of International Sujok Association of India. And for his introduction, I'll request Dr. Antim Kumar Jain कि वो डॉक्टर अशोक कुमार कोठारी जी का परिचय दें. डॉक्टर अंतिम जैन. थैंक यू वेरी मच सर. आज हमारे साथ में सुजोक के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक कोठारी सर हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं. एंड डॉक्टर अशोक कोठारी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन इंडिया. Dr. Ashok Kothari has vast experience of the over 35 years in the treatment and over 25 years in the teaching in the impact treatment of the Sujok therapy. He is the popular for his excellent teaching skill. He is one of the most sought of the teachers and has trained thousands of the pupils Sujok from all works of the society, including medical practitioners. Now, he is a President of the West and North Zone of the International Sujok Association ISA in India, head of the publication department of the Sujok in India. He is founder of the Rajasthan Institute of the Alternative Therapies, working for the promotion of alternative and holistic healing methods, well as General Secretary of the Yoga Peace Foundation dedicated to promotion of the yoga. On his experience, contribution to dedicated service in the field of the Sujok, he has been confirmed open the distance of the Life Achievement Award, Special Award of Honor for the dedication, outstanding service for the development of the Sujok and ISA, Best Sujok Lecturer Award, International Sujok Association. He was also conferred open Life Achievement Award by Heritage Foundation. He is an official International Sujok Lecturer, competent and qualified to teach Sujok from the basic beginners to advanced professional level, as well as other methods development of the Professor Park Jebu organization. तो आज हमारे साथ में ऐसे सुजोक के विद्वान जो कि अनेक वर्षों से सुजोक थेरेपी में चिकित्सा कर रहे हैं और प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अशोक कुमार कोठारी सर को. वो आए और आपको सुजोक इन इमरजेंसी सब्जेक्ट पे अपनी बात रखेंगे. डॉक्टर कोठारी सर. थैंक यू अंतिम जी, और एसबी पास का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इतना वंडरफुल प्रोग्राम करने के लिए. थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दें, मैं प्रेजेंटेशन इस पे लोड कर दूं. सर आप स्क्रीन शेयरिंग यूज कर सकते हैं. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयरिंग, एक मिनट. ये पीपीटी मुझे इसके अंदर कनेक्ट करना. अच्छा, हो गया हो गया. Am I visible now? Sir, you are visible, but your PPT is not visible. PPT. Sir, first, okay. Sir, your PPT is visualized. Visualized, and I'm also visible now. Yes. So thank you. Sorry for the interruption. तो आज बात करेंगे सुजोक इन इमरजेंसी के बारे में, और I hope this program is going to be very useful practically, because I try to cover some important aspects which can be used by people without even any background of Sujok or any system of medicine. तो थोड़ा सा सुजोक के इंट्रोडक्शन से बात शुरू करेंगे ताकि आपको सुजोक का बैकग्राउंड मालूम पड़े और सुजोक की यूटिलिटी मालूम पड़े. हमारा आज का प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताई है, हमारा प्रोग्राम है सुजोक थेरेपी इन मेडिकल इमरजेंसीज. और मेडिकल इमरजेंसीज में भी मैंने वो जरूरी मेडिकल इमरजेंसीज कवर की है जो हम लाइफ के किसी भी फेज के ऊपर उसको यूज करके लाइफ सेविंग टेक्निक की तरीके से यूज कर सकते हैं.
सुजोग थेरेपी बिल्कुल एक कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. इट इज नॉट जस्ट ए सिस्टम ऑफ पेन किलिंग टेक्निक, इट इज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सबसे बड़ी सुजोग के बारे में जो लोग गलतफहमी है या गलतफहमी रखते हैं या बताते हैं, प्रोफेसर पागजू ने जो ये सिस्टम बनाया है, दिस इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन. एनी डिजीज, I mean to say any disease can be successfully treated by Sujok therapy, and it can be used definitely, certainly it can also be used for prevention of the disease, maintaining the health of the disease. But the main, it is one form of integrated system of medicine capable to treat variety of disease and in a very simpler manner without causing any difficult modalities of the treatment. So we all know Sujok. Professor Park-jo, who created this system, he is coming from South Korea. South Korea से बिलोंग करते थे, इसीलिए सुजोग जो वर्ड है वो कोरियन लैंग्वेज से आता है. सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है फुट. तो सारा का सारा ट्रीटमेंट सुजोग के अंदर हमारे को हाथ और पैर में ही करना होता है. इसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी जो वर्च्यू है, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज सेफ्टी ऑफ एप्लीकेशन. किसी भी तरह का नुकसान हम नहीं कर सकते. हमारे को निडल लगाना है, हमारे को मैग्नेट लगाना है, हमारे को और कोई ट्रीटमेंट करना है, वो खाली हाथ में ही करना है या पैर में करना है. और इसीलिए हम बॉडी की एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को किसी भी तरह से डिस्टर्ब किए बिना इस सिस्टम को सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा वर्च्यू है इसका, सुजोग थेरेपी का. तो सुजोग थेरेपी इज ए नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट इज ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू हैंड्स एंड फुट. ये हाथ और पैर के अंदर स्पेशल टैलेंट है, नेचर ने इनबिल्ट टैलेंट दिया है हाथ के अंदर. हमारे हाथ और पैर की जो डिजाइन है वो ह्यूमन बॉडी से रिजेम्बलेंस में बनाई हुई है, उसकी सिमिलर बनाई हुई है. और नेचर का और क्रिएटर का क्लियर मैसेज है, आवर हैंड्स एंड द फीट हैव बीन डिजाइन्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस टू डू द टास्क ऑफ द हैंड एंड द फीट एट द सेम टाइम कीपिंग द सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी. देयर इज अनदर important message that our body can be controlled, our body can be treated in case of need, and in case of urgency we can use our body, our hand and our foot as our own personal clinics or hospital. So this is the main message in the similarity of the body. This is how we are using the Sujok therapy. Sujok therapy, it is a very effective system. I told you, we already कहा कि ये बहुत effective method of treatment है, safe है, बिल्कुल हार्मलेस है, यूनिवर्सलिटी है, विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग, बिना किसी विशेष एजुकेशनल बैकग्राउंड के. खाली आपको सीखने की जिजीविषा हो, आपको सीखने की इसकी आकांक्षा हो, आप सक्सेसफुली इस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. तो ये सुजोग थेरेपी का सबसे बड़ा गुण है यूनिवर्सलिटी, इजी एक्सेस है, बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, सिंपल टूल्स है, सिंपल टेक्निक्स है, और पूरा का पूरा सिस्टम हमारे को हाथ में करना है और अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं. इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्टेबल एंड फास्ट रिजल्ट्स है. ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट किया जब भी फायदा हुआ, स्टेबल रिजल्ट्स है और फास्ट रिजल्ट्स है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल अदर मेडिकल सिस्टम दे यूजुअली एंड मेनली फोकस ऑन ट्रीटमेंट पार्ट. देयर इज नो इनबिल्ट क्राइटेरिया अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. सुजोग थेरेपी के अंदर ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि यू कैन यूज दिस सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, but at the same time you can use this system for prevention and control of diseases to lead a very healthy and happy life. So our gratitude to Professor Park-jo, who has created such a wonderful system by which any person, irrespective of the caste and creed or educational background, they can successfully use. And throughout the world, millions and millions of people are using this system, including medical practitioners. तो ये सुजोग थेरेपी का हमारा हाथ और पैर का बॉडी का कुछ रिलेशनशिप है, वो जस्ट हम थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं. इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, कैसे हमारे हाथ के अंदर और हमारे पैर के अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है. इमेज हमारी पूरी बॉडी की, हमारे ह्यूमन बॉडी की प्रोजेक्शन हमारे हाथ और पैर में मौजूद है, और उस प्रोजेक्शन को यूज करते हुए, and when I mean to say projection, each and every part of the body as well as energy system of the body, which our previous experts and have been discussing about that. That means not only we can treat our body in organs and systems in the hand, at the same time we can treat our meridians also in the hand. मेरिडियन का जितना भी ट्रीटमेंट हम बॉडी पे करना चाह रहे हैं,
वो सारा का सारा मेरिडियन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हम हाथ में भी इजी तरीके से कर सकते हैं। हम चक्रास का ट्रीटमेंट हमारे हाथ में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पालजू ने दूसरे ट्रीटमेंट के मेथड दिए हैं, ट्राई ओरिजिन एक्यूपंक्चर, एडवांस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, कितने भी ट्रीटमेंट है वो सारे के सारे हम हाथ में या पैर में कर सकते हैं। ये पद्धति किसी भी प्रकार के निदान है और रोग की गंभीरता के इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज, दिस इज ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज गोइंग टू यील्ड गुड रिजल्ट इफ अप्लाइड प्रॉपरली। वो पुराना रोग हो, नया रोग हो, जो डिजीज की कैटेगरी कोई भी हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एक्सपर्टीज पे फर्क पड़ता है हम इसको कैसे यूज करते हैं। ये बिल्कुल ड्रगलेस थेरेपी है, हम जानते ही हमारा प्लेटफॉर्म ड्रगलेस थेरेपी का है, और इस ड्रगलेस थेरेपी को यूज करके सक्सेसफुली हम वैरायटी ऑफ डिजीजेस ठीक कर सकते हैं। कैसे हमारी हाथ में बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है, जस्ट टू हैव एन आइडिया हाउ आवर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर हैंड, दिस थोरेसिक कैविटी पार्ट यानी चेस्ट का पार्ट कैसे आया हुआ है, लंग्स कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, और हार्ट के ऊपर मैं चाहता हूँ आपका स्पेशल अटेंशन, हार्ट के कॉरस्पोंडेंस एरिया पे आपका स्पेशल अटेंशन चाहता हूँ, क्योंकि हम आज एक जो कैटेगरी है हमारी मेडिकल इमरजेंसी में डिस्कस करेंगे, एंजाइना पेन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कार्डियक इनसफिशिएंसी हो, अर्देमिया की प्रॉब्लम किसी को अचानक हो जाए, तो उस वक्त हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आज हमारा इस क्लास के अंदर एक कंटेंट है। तो मैं चाहता हूं कि हार्ट का ये जो कॉरस्पोंडेंस एरिया आपको दिख रहा है, हाथ के अंदर जो अंगूठे के नीचे का जो थेनर पार्ट है, हमारे हाथ का ही थेनर पार्ट है, इसके अंदर इस लाइफ लाइन के बॉटम के ऊपर ये लोकेशन आप जो देख पाते हैं, ये हार्ट की लोकेशन है। इसको जरूर आप ध्यान से देखें, कैसे ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट हमारे हाथ में आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इस तरीके से पूरी हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी हमारी पूरी की पूरी हमारे हाथ में और पैर में ऑर्गेनाइज्ड है। उसको समझकर, और उसको समझने के लिए भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल तरीके से हम उसको समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सुजोग थेरेपी इन इमरजेंसीज, आपात स्थितियों में सुजोग थेरेपी का कैसा यूज करें, आज का जो टॉपिक है, जिससे हम प्रैक्टिकली इस कुछ बात को करें और एक मैसेज लेकर जाएं। पहली बात तो यहाँ पर फर्स्ट एड के बारे में जो सुजोग इन इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त के लिए बात कर रहे हैं जब पेशेंट को सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट की, उसके जीवन को बचाने की लाइफ सेविंग कंडीशन के अंदर, उस वक्त हमारी सारी अर्जेंसी इस बात को है कि उस सिचुएशन को कैसे पार पाया जाए। जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल एड ना मिले, जरूरत हो तो मेडिकल एड की भी जरूरत पड़नी चाहिए और लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लाइफ सेविंग कंडीशन में जब तक आपको, जिसको कहते हैं गोल्डन आवर है, उस तक अगर हम पेशेंट को बचा सके तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कतई भी कि सुजोग थेरेपी खाली वर्किंग इन दोज मेडिकल कंडीशन इज एंड इज नॉट एबल टू ट्रीट दोज कंडीशन। यस, अभी की अर्जेंसी है कि उस पेशेंट को किस तरह से स्टेबल किया जाए, रिवाइव किया जाए और बचाया जाए। लेकिन उसके बाद में जब कंडीशन स्टेबल हो तो प्रॉपरली दिस पर्सन कैन बी ट्रीटेड फॉर द अंडरलाइंग कंडीशन ऑल्सो। जो रोग का मूल कारण है जिसके वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, उसका उपचार भी किया जा सकता है सुजोग थेरेपी से, और उसके लिए अपना एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ट्रीटमेंट का सिस्टम है, उसको फॉलो करके कर सकते हैं। टाइमली हेल्प बाय सुजोग थेरेपी कैन बी लाइफ सेविंग, और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस है, और ऐसे वेबिनार्स के अंदर जो मेरी टॉक दी है और ऐसे लोगों के फीडबैक है जिन्होंने इस सिस्टम को यूज किया बिना किसी सुजोग की प्रॉपर ट्रेनिंग के, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। जब उन्होंने लेक्चर को सुना और कभी किसी को, पड़ोसी को, घर में, या इवन फ्लाइट के अंदर वो पैसेंजर को ऐसी सिचुएशन हो गई, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके बचाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसी तरीके से, तो सबसे ज्यादा एक जरूरी, जो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हमारी लाइफ में पैदा कर सकती है, वो हमने पहले उसको लिया हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अत्यधिक उच्च रक्तचाप। और सब लोग यहाँ पार्टिसिपेंट है, सारे मेडिकल बैकग्राउंड से है, अल्टरनेटिव सिस्टम से हो या मॉडर्न मेडिसिन से हो या दूसरे सिस्टम से हो, वो हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक है। उसको अगर उसी वक्त उस ब्लड प्रेशर को काबू में नहीं किया जाए तो वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं सक्सेसफुली। और इसका तरीका, हम 2-3 तरीके इसके बारे में बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम जो सिचुएशन तय कर रहे हैं और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं,
अगर एक टेक्निक काम ना करे जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके अलावा हमको दूसरी टेक्निक यूज करनी है जो इसके अंदर और है, तो हम यूज कर सकते हैं उस टेक्निक को, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, दैट इज सीवियर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बहुत ज्यादा हो जाए, नीचे वाली जो लिमिट है वो 100 के ऊपर चली जाए, 110 120 हो जाए, ऊपर वाला 180 190 200 हो जाए, उस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से इमीडिएटली, जब तक और कोई सिचुएशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए, हम उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं। और ये इमीडिएट अटेंशन वाली है, ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकती है, ये और दो फेटल कंडीशन में डेवलप हो सकती है। तो सबसे जो सरल टेक्निक है और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रबर बैंड टेक्निक है। ये हाईली इफेक्टिव एंड रबर बैंड टेक्निक है और इसको आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए आपको, एक रबर बैंड चाहिए। ये रबर बैंड है जो सबके घर में हर सिचुएशन में अवेलेबल है। और उस रबर बैंड को आपको क्या करना है, अंगूठे के ऊपर, टिप के ऊपर, और अंगूठे का टिप भी आपको समझ में नहीं आए तो एक और टेक्निक है, पूरे थंब के ऊपर इसको रैप कर ले, पूरे थंब के ऊपर रैप कर ले, या सिंपली अंगूठे का टिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगूठे के टिप के, मैंने दोनों पिक्चर आपको दिखाई है, अंगूठे के टिप के ऊपर इसको टाइट रैप कर दें। इतना बहुत ज्यादा टाइट ना करें कि ये थोड़ी सी ही देर में हट करने लगे और ब्लू पड़ने लग जाए, नीला पड़ने लग जाए, लेकिन इसको टाइट जरूर रखें और टाइट रखे इसको होल्ड कर लें अंगूठे के टिप्स के ऊपर या पूरे अंगूठे पे, जैसा आपको उस वक्त जैसा ध्यान पड़ जाए उस एरिया के ऊपर रबर बैंड को टाई कर दें, रबर बैंड को बांध दें। इस तरीके से रबर बैंड को टाई कर दें, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगाएं, बहुत ज्यादा टर्न नहीं लगाएं, लेकिन 30 टर्न लगा के ये जब एरिया टाइट कर दें इसको, और ऐसा रखें कि 2 4 5 मिनट आप उसको रख सके। तो ये आप इसको रखेंगे धीरे धीरे, और इवन देन आपने अगर ज्यादा टाइट नहीं भी किया है तो थोड़ी देर में ये हट करने लगेगा। तो अगर जब थोड़ी देर में हट करने लगे तो सबसे ज्यादा जरूरी, लगाने से भी ज्यादा जरूरी जो बात है, इसको आपको टर्न बाय टर्न धीरे धीरे खोलना है, बिना किसी जर्क के। ऐसा नहीं कि आपने ये लगाया और इस झटके से नहीं खोलना है। रबर बैंड को इस एरिया पे लगाकर, रबर बैंड को इस एरिया के ऊपर लगाकर इसको होल्ड करें, धीरे धीरे इसको खोलें, इसको होल्ड करें, वापस धीरे धीरे इसको खोलें, और 2 4 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे इजी और इफेक्टिव टेक्निक है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एक और टेक्निक है, सारे फिंगर टिप्स के ऊपर माइक्रोपोर प्लास्टर की मदद से हमारे अंगूठे, हमारी सारी उंगलियों के फिंगर टिप्स पे बकवीट जिसको कुट्टू कहते हैं, पहला तो इसको क्या कर लें, एक और काम कर सकते हैं, सारे फिंगर टिप्स के ऊपर ब्लैक कलर लगा दें। क्या लगा दें? सारे फिंगर टिप्स पे ब्लैक कलर लगा दें। एक हाथ की सारी फिंगर्स पे ब्लैक कलर लगा दें, दूसरे हाथ की सारी फिंगर टिप्स पे माइक्रोपोर प्लास्टर की मदद से बकवीट लगा दें, और जहां पर बकवीट लगाया है उसकी मदद से उस एरिया के ऊपर मसाज करें, स्टिमुलेशन करें। ये काम कब तक करना है? जब तक 5 मिनट 10 मिनट की भी किसी भी कंडीशन के अंदर, कितनी देर करना है वो धीरे धीरे, जब तक पेशेंट नॉर्मलाइज नहीं हो जाए आप इसको जरूर करें। और हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इसके अंदर ब्लड प्रेशर में आने की पूरी संभावना रहती है। तो रबर बैंड टेक्निक हुआ। रबर बैंड टेक्निक भी ऐसा कर सकते हैं, एक हाथ में कलर लगा दिया, दूसरे हाथ में रबर बैंड टेक्निक कर दिया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इसकी जो हमारी टेक्निक्स है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक टेक्निक आप लगा सकते हैं अंगूठे के ऊपर, अगर आपको रबर बैंड भी उस वक्त अवेलेबल नहीं है, किसी ऐसी सिचुएशन में एंटेंगल्ड हो गए हो कि आप और कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर हम हमारे अंगूठे की डीप मसाज, डीप और हार्ड मसाज, डीप हार्ड एंड पेनफुल मसाज, एंड इसकी जब तक करनी है जब तक वो पेशेंट नॉर्मलाइज होकर उसकी सिचुएशन कंट्रोल में जैसी आने नहीं दिखे। तो आप अच्छी तरीके से डीप मसाज करें, अंगूठे के ऊपर मसाज करें, अंगूठे के टिप के ऊपर, इंक्लूडिंग बैक साइड के अंदर उसका नेल पार्ट, उसको दोनों को इंक्लूड करें और अच्छी तरीके से डीप मसाज करें। इसके अलावा एक और साथ में जो काम कर सकते हैं वो ये काम कर सकते हैं कि ये अंगूठे के बैक साइड के अंदर नाखून के ऊपर का जो हिस्सा है, प्रॉक्सिमल जॉइंट से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, प्रॉक्सिमल जॉइंट से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसके ऊपर भी डीप मसाज करें। डीप मींस डीप, वो हर्ट करे पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त। पेशेंट को इस मसाज की वजह से दर्द हो तो भी उसकी चिंता न करें, और लेकिन डीप मसाज करें।
और ये स्पेशल पॉइंट है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर कैन इमीडिएटली टर्न टू कम इन कन्वर्ट टू दी हेमरेज सिचुएशन और या स्ट्रोक कंडीशन। उस कंडीशन को रोकने के लिए ये स्पेशल पॉइंट है, उस कंडीशन को रोकने के लिए स्पेशल पॉइंट है, जिसके ऊपर आप जो मैंने रबर बैंड टेक्निक बताई है वो करने के साथ में ये एरिया वो जरूर करें। रबर बैंड टेक्निक से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, लेकिन वो स्टेबल रहे उसके लिए इस एरिया की और ब्रेन के एरिया की मसाज करें। वापिस समझें, रबर बैंड टेक्निक करने से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कम होने के बाद में ये दोबारा ना बढ़े, ये भी तो जरूरी है ना। आपने एक बार कम कर दिया और 10 मिनट में वापस बढ़ने लगा, 15 मिनट में वापस बढ़ने लगा, तो आपको क्या करना है, रबर बैंड टेक्निक के थ्रू आपने उसको कम किया और कम करने के बाद में जो मैंने बताया कलर का स्कीम, आपको बकवीट का स्कीम और अंगूठे का ये वाला हिस्सा, अंगूठे का ये वाले हिस्से के ऊपर आपको इंटरमिटेंटली बार बार, एक बार किया, आधे घंटे बाद में थोड़ी बार और किया, और फिर मेडिकल हेल्प अगर मिल गई पेशेंट को तो ठीक बात है, और मेडिकल हेल्प की गुंजाइश नहीं है, रात बिरात हो ये सिचुएशन है, तो आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में करना है और फिर देख लेना कि अभी स्टेबल है और वापस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब आप उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल टेक्निक और है, ये टेक्निक है हमारी फिंगर्स के ये दो वाले एरिया के ऊपर आप येलो मस्टर्ड, या अगर येलो मस्टर्ड नहीं मिले तो पीपर मिल जाए, काली मिर्च जो मिल जाए, माइक्रो प्लास्टर की तरफ से पैर हमारी बीच की दो उंगलियों के बीच वाले मिडिल फेलेंक्स के ऊपर, मिडिल टू फिंगर के मिडिल फेलेंक्स के ऊपर पीली सरसों या काली मिर्च माइक्रोपोर टेप की मदद से लगा दें और उसका भी स्टिमुलेशन करें। तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को रोकने के लिए कंडीशन है। और ये एरिया है जो मैंने बताया, ब्रेन का कौन सा एरिया अंगूठे के ऊपर, ये यिन और यांग दोनों सरफेस के ऊपर ये एरिया ब्रेन का, हार्ट का कॉरस्पोंडेंस एरिया कौन सा है ये मैंने आपको बताया, इसके ऊपर दोनों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। एक और टेक्निक, अगर किसी कारण से आपको प्रीवियस बताई हुई, वो बहुत कम केसेस है लेकिन रेयरली कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने जो सारा काम किया है उससे अभी तक पेशेंट को रीजनेबल इंप्रूवमेंट नहीं आया है, पेशेंट को अभी भी लाइफ सेविंग सिचुएशन में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, ये फिंगर टिप्स के जो पॉइंट यहाँ पर मार्क किए हुए हैं उसके ऊपर से, अगर आपके पास में निडल है या आपके पास में निडल नहीं है, कोई सिरिंज है किसी भी तरीके से, या ब्लड प्रेशर को चेक करने वाली जो ब्लेड है, उससे फिंगर टिप से एक एक दो दो बूंद ब्लड निकाल दें, एक एक दो दो बूंद ब्लड निकाल दें। मैं आपको कहना आई मीन इट दैट इट इज वर्किंग लाइक दैट। मेरे ऐसे बहुत सारे मेडिकल कलीग्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन से आने वाले कलीग हैं जिन्होंने इन टेक्निक्स को चैलेंजिंग टाइम में यूज किया है, चैलेंजिंग टाइम में, जब मेडिसिन से भी ब्लड प्रेशर को काबू में नहीं किया जा सका, जब भी ये सिस्टम ने काम किया है। तो ये फाइनल अल्टीमेट है सॉरी, पुरानी वाली अगर टेक्निक से काम हो जाए तो ठीक है, लेकिन उन टेक्निक से अगर आपको फर्क ना पड़े तो अल्टीमेटली एक टेक्निक और है कि हम हमारे फिंगर टिप से, कोई सिरिंज की मदद से, कोई निडल की मदद से, या कोई जो स्टेलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अनहाइजीनिक और अनस्टेलाइज कोई चीज यूज न करें, कोई डायबिटीज वाली ब्लेड से इसको आप यूज करके इस फिंगर टिप्स के ऊपर आप ब्लेड थोड़ा एक एक बूंद या दो दो बूंद आप ब्लड निकाल दें, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को आप अवॉइड कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हमने डिस्कस की। दूसरी कंडीशन है एंजाइना, हार्ट अटैक, एक्यूट कार्डियक इनसफिशिएंसी, कार्डियक अरिथमिया और डिस्टेनिया। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हृदय शूल है, दिल का दौरा है, हार्ट फेलियर है, हृदय अतालता है, यानी उसके अंदर जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है, उस तरीके से, या श्वास के अंदर बहुत प्रॉब्लम है लेने की, कार्डियक इनसफिशिएंसी जानते हैं हम, ये भी जानते हैं, ये भी कितना लाइफ थ्रेटनिंग है, ये पेशेंट के लिए इमीडिएटली मेडिकल एड, उस वक्त अर्जेंसी जरूरी है मेडिकल हेल्प लेना। ये एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा एरिया हार्ट में हार्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा एरिया हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को। ये एरिया आपको अलग से इंडिकेट किया हुआ है, ये एरिया है फोकस का, एंजाइना के अंदर, हार्ट कार्डियक इनसफिशिएंसी के कंडीशन के अंदर, और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये एरिया
स्पेशली, ये आपको मार्क कर लेना है। ये एरिया अंगूठे की सीध में लाइफ लाइन का जो बॉटम है, उस एरिया के ऊपर हार्ट एंजाइना, हार्ट अटैक, अरिदीमिया या कोई भी ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इस एरिया पे फोकस करना है। ये एरिया के ऊपर फोकस करना है, आपको मार्क कर लेना है और जीवन में ये एरिया तो याद करना है। और एक और बात है, जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है या जिनके ऑलरेडी हार्ट की कुछ मेडिकेशन चल रहा है, वो लोग भी बिना डरे इस पॉइंट को कर सकते हैं। इमरजेंसी की तो बात अलग ही है, you can use also for the purpose of treatment. This area should be well recognized, and in case of heart attack, in case of medical emergency, this area should be very strongly stimulated. Again, not lightly, very strongly stimulated. बहुत अच्छी तरीके से हार्ड प्रेशर के साथ में, इस तरीके से आप दो फिंगर के साथ में, इस तरीके से दो फिंगर रखे हुए इसके ऊपर डीप मसाज कर सकते हैं। डीप मसाज, रियली आई मीन टू से इट शुड बी रियली डीप। डीप मसाज इस एरिया की करनी है। डीप मसाज के साथ में आप इस एरिया को स्क्वीज कर सकते हैं। इस एरिया को स्क्वीज करें, स्क्वीज करें, स्क्वीज करें, नकल से करें, डीप प्रेशर करें, स्क्वीज करें, मसाज करें। इस तरीके से किसी भी तरीके से इस एरिया के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना है जब तक पेशेंट को इंप्रूवमेंट ना आ जाए। हम जानते हैं कि मेडिकल कंडीशन में कुछ दो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में थोड़े से कुछ कंडीशंस है, पेशेंट का लेग्स एलिवेट कर देते हैं ताकि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है लेग की तरफ से कम हो जाए और हार्ट को ज्यादा लोड ना करना पड़े। उसकी एक सुजोग टेक्निक है, कैसे हार्ट का लोड जो लेग्स की तरफ है ब्लड सर्कुलेशन का कैसे कम किया जाए। बीच की दो फिंगर के रूट के ऊपर, बीच की दो फिंगर के रूट के ऊपर रबर बैंड लगा दिया जाए। बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, टाइट बट नॉट टाइट। बीच की दो फिंगर के ऊपर दोनों हाथों के अंदर रबर बैंड लगा दिया जाए। तो वो जैसे हमने एलिवेट कर दिया पैर का, उस वो तो करो ही करो, साथ में ये जरूर करें, तो उससे आपको और एडिशनल फायदा होगा और हार्ट को एक सपोर्ट मिलेगा कि किस तरीके से हम हार्ट को और एडिशनल सपोर्ट, ये पॉइंट, ये रबर बैंड टेक्निक। और एक साथ में एक और टेक्निक कर रही है, ये हाथ का जो अंगूठा है, हाथ का जो अंगूठा है उसके साथ में आप, ये एक तरीके से सीपीआर है। ये जो सारी टेक्निक मैं बता रहा हूं, ये हार्ट अटैक की कंडीशन के अंदर, एंजाइना के केस के अंदर ये सीपीआर का काम करती है। ये सीपीआर का काम करती है। आप अंगूठे का एक और टेक्निक, अंगूठे वो मसाज करने के अलावा हाथ का ये जो अंगूठा है उसको पकड़कर बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। पूरा अंगूठा पकड़कर, ऐसे ऊपर की टिप नहीं, पूरे अंगूठे को होल्ड करें और उसको बाहर की तरफ ट्विस्ट करें और होल्ड करें ट्विस्ट कर थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर कोठारी, काइंडली समराइज सर। Just बस within 5 minutes, sir. I have been handed over only, sir, even 15-20 minutes late. But I will take only 5 minutes. Okay. तो ये सीपीआर है सुजोग से, ये हार्ट की इस कंडीशन के अंदर, ये वही मैंने बताया डिफरेंट टेक्निक से स्क्वीज करके और करके और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये वही है। और एक ये जो डिस्पीनिया है, जो ब्रेथलेसनेस है, उसके लिए आप इस डायरेक्शनल अंदर की तरफ मसाज करें, इस एरिया की, लंग्स के एरिया की अंदर की तरफ मसाज करें ताकि ब्रेथलेसनेस सिचुएशन के अंदर इंप्रूवमेंट आए। एक जो बहुत जरूरी बात है, अभी हमारे भाई हेमंत जी ने बात किया था हाथ के अंदर मेरिडियंस के बारे में और उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी बताई थी। इस कंडीशन के अंदर मैं आपको दो टेक्निक बता रहा हूँ, हार्ट मेरिडियन और लंग मेरिडियन। ऐसी हार्ट अटैक, डिस्पीनिया, इस कंडीशन के अंदर आपको दो मेरिडियन के ऊपर एक साथ काम करना है, लंग मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन। तो उसके अंदर हमारी इंडेक्स फिंगर की ऊपर की लाइन हार्ट लंग मेरिडियन है और नीचे की लाइन हार्ट मेरिडियन है। उसके ऊपर बाहर की तरफ मसाज करनी है और कुछ नहीं, टूल की जरूरत है आपको, कोई निडल नहीं, कुछ मैग्नेट नहीं, आपको इस एरिया के ऊपर बाहर की तरफ मसाज करनी है। आउटवर्ड मसाज, आउटवर्ड मसाज पहले हार्ट मेरिडियन की करो, पहले हार्ट मेरिडियन की करो और उसके बाद में लंग मेरिडियन की करो। हार्ट मेरिडियन की करो, लंग मेरिडियन की करो। ये एक एडिशनल इफेक्ट है हार्ट की कंडीशन के अंदर। हम अनकॉन्शियसनेस हो जाए, हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट फेंट हो चुका है और कुछ हो गया है, उस कंडीशन में इस पॉइंट को भी हम यूज कर सकते हैं फेंटिंग से रिवाइव करने के लिए उसको, और
इस पॉइंट के अलावा ये फिंगर टिप्स, जैसे मैंने ब्लड क्लॉटिंग के पहले बारे में बताया, इसकी मसाज करके आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं फेंटिंग से। एक पॉइंट ये और है, एक पॉइंट ये सेंटर का पॉइंट है, पेशेंट अगर फेंट है, अनकॉन्शियसनेस लूज कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी अच्छा डीप मसाज करके उसका आप स्टिमुलेशन करके उसका बेनिफिट उसको जरूर करें। ये कुछ चीजें हैं। चलो मैं खाली कोविड के बारे में एक जरूर आपको सिचुएशन अभी कंट्रोल में लगती है, लेकिन फिर भी एक मैं सिचुएशन कवर करना चाहता हूं कि कोविड के केस में हम क्या कर सकते हैं। कोविड के केस के अंदर ये मेरे एरिया मार्क किया हुआ है, ये एरिया मार्क है, इसके ऊपर मैंने 2 पिक्चर बताई हुई है। फिंगर्स के इस पैर के मिडिल पार्ट के अंदर, मिडिल फिंगर हो या कोई फिंगर पे हो, इस तरीके से तुलसी के पत्ते आपको माइक्रोपोर्ट प्लास्ट की मदद से बांधने। तुलसी के पत्ते इनहेलेशन को, ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने के लिए, ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने के लिए। ये मैंने बताया लंग्स का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया तो आपको पूरा करना ही करना है। ये लंग्स है हाथ के अंदर, इसके एरिया के अंदर, और इसको इनवर्ड मसाज, इनहेलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए। और इस तरीके से आप इसके ऊपर बेसिल लीव, तुलसी की पत्ती माइक्रोपोर्ट प्लास्टर से लगा दें। हर 4 घंटे में लीव को बदलना जरूरी है, हर 4 घंटे में लीव को बदलना जरूरी है। और इस तरीके से पेशेंट को आप हेल्प कर सकते हैं कोविड की सिचुएशन में। एक और जरूरी है, कोविड की सिचुएशन में लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है ऑक्सीजन लेवल के लिए। जो मैंने पहले लंग मेरिडियन बताया, उसकी अगेन इस लंग मेरिडियन की अच्छी मसाज करना जरूरी है, बहुत अच्छी मसाज करना जरूरी है, रिपीटेड मसाज करना जरूरी है जब तक ऑक्सीजन लेवल ना बढ़ जाए। और फाइनली एक मैंने ये सुजोग की प्रोफेसर पाकजोग की दी हुई मुद्रा है, ट्राई ओरिजिन मुद्रा कहते हैं। लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए राइट हैंड रिंग फिंगर के बॉटम के अंदर आपको एक फिंगर रखनी है, लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बनानी है, लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बनानी है, राइट हैंड से ये मुद्रा बनानी है। रिंग फिंगर के बॉटम में खाली आपको टच करना है और उससे आपको खाली ये मेंटेन करके रखनी है लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये कुछ पॉइंट है, स्पेशली मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो पॉइंट है वो बहुत यूजफुल है ऑक्सीडेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट्स है मेडुला ऑब्लिंगेटा के, आप यूज कर सकते हैं। कफिंग के लिए भी मेरे पास काफी था, लॉन्ग कोविड की सिचुएशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी समय की मर्यादा है और ऑर्गेनाइजेशंस का डिसिप्लिन मुझे मानना है, तो इसीलिए मैं इसको विराम दूंगा। कुछ केसेस मेरे थे और, लेकिन मैं आगे बात करेंगे। एक ही सब्जेक्ट है, घर घर में सुजोग हो, हर परिवार में सुजोग चिकित्सक हो, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ मेडिकल सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वैसे भी मदद कर सकेंगे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में हम जरूर लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली अंतिम जी ने जो ये प्रयास किया है, मैं बहुत हृदय से आभार करता हूँ। SB पास का आभार करता हूँ जो मुझे उन्होंने अवसर दिया। और कभी कोई किसी भी तरह की गाइडेंस और कोई सपोर्ट चाहिए इसके लिए, तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार कोठारी जी, आपका आशीर्वाद हम सभी। थैंक यू सर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी को दी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं सर। तो मैं सभी लिसनर्स को ये बता दूं कि डॉक्टर कोठारी का नंबर अभी हम शेयर करेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं और वो आपको बड़ी सहृदयता से आपको सारी आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर देंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जनरस टू अस। आपकी ब्लेसिंग्स हमारी बनी रहेंगी।